जय हिंद। हम करेंगे जनवरी 28 का रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड फॉर हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स? तो इन्होंने किए हैं टोटल 139। The Padma Awards, among the country's highest civilian honor, are conferred in 3 categories. पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये 3 कैटेगरीज है। Padma Vibhushan, the highest honor among the Padma Awards, is conferred for exceptional and distinguished service. Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. ये इसी कैटेगरी में दिए जाते हैं। Recently, President Donald Trump has announced a 25% tariff on all goods imported from which country? तो ये कोलंबिया पे लगा दिया। सब पे टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाओ। अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनको भी धमकी मिली है कि अपना रुपया बनाया तो हम तुम पर भी टैक्स लगाएगा। ये है कोलंबिया। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये पनामा सिटी है, देख रहे हैं? ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ज्वाइन करती है। ये पूरी है कोलंबिया सिटी। यहाँ पर है वेनेजुएला, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। साउथ में है इक्वाडोर, पेरू, और ईस्ट में है ब्राजील, और वेस्ट में तो पैसिफिक ओशन हमें दिख ही रहा है। और इससे इक्वेटर भी पास होती है। ये देखो, ये 0 डिग्री लाइन दिख रही है, ये है इक्वेटर। ये भी इससे पास होती है। एंडीज माउंटेन है, वो भी यहाँ पे पास होता है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे एक मेटा रिवर भी है। मेटा, गूगल का मेटा फेसबुक मेटा हो गया है। When has the approval to implement the unified pension scheme has been given? तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से लागू। The government has decided to introduce unified payment system as an enhanced option under the national pension scheme for the employees of the central government. तो ये सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट अपना स्कीम ही इम्प्लीमेंट कर सकती है, who are covered under the same. Next, which state has won the Best W झांकी award in the Republic Day 2025 parade? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ये जो महाकुंभ वाली झांकी है ना, इसको पीपल्स चॉइस कैटेगरी में मिला है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम पे बना था ये। Which is the worst performing index in Fiscal Health Index 2025? तो ये है पंजाब। क्या पंजाब अकेला है? नहीं, इसके साथ केरल भी है। Next, which state has launched Chief Minister Mobile Operation Theatre? तो इसको बोलेंगे CMMOT on 26 जनवरी। तो ये नागालैंड में लॉन्च हुआ है। The CMMOT will deliver advanced surgical and healthcare services to rural and remote areas of Nagaland, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज है। Who has recently introduced India's first air taxi prototype? हवा में उड़ने वाली टैक्सी। तो ये है सरला एविएशन ने। ये बैंगलोर बेस्ड एविएशन कंपनी है, और इन्होंने बोला है कि 2028 तक हम अपना जो एयर टैक्सी सर्विस है वो रिलीज कर देंगे। Who has recently been elected as the new member of Marylebone Cricket Club? तो ये बने हैं जय शाह, जो BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। Former Board of Control for Cricket in India (BCCI) secretary and the current International Cricket Council chairman, Jay Shah was elected as a board member on Marylebone Cricket Club Advisory Board. Recently, which former Chief Justice of India has the President approved to be honored with Padma Vibhushan Award? तो ये है जस्टिस KS खेड़कर को। इन्होंने क्या किया था? नहीं, इन्होंने इनके साथ जो आइकॉनिक राइटर हैं MT वासुदेवन नायर एंड वायलिनिस्ट लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम were conferred Padma Vibhushan awards. Which Gulf has been renamed as Gulf of America by US President Donald Trump? मेरा मेरा मेरा, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को मेरा 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 गल्फ बना लिया।
चेंज द नेम ऑफ माउंट मैकिनली, इसका भी नेम चेंज होने वाला है, ठीक है। देनाली का जो हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली, उसका भी। What position does India rank in Global Firepower Index 2025 with a score of 0.1184? तो हमारी रैंक है 4th, और ये रिलीज कौन करता है? सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। According to World Economic Forum, civilian fatalities have surged by over 30% between 23 and 24, largely driven by escalating hostilities in the Middle East, North Africa, Eastern Europe. Next, the Commerce Ministry has set a target of 10,000 geographical indication tag for Indian product by which year? तो ये है year 2030 तक। अभी 605 है, 2030 तक इसे 10,000 करना है। अच्छा टारगेट है। GI टैग क्या होता है? GI टैग से इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जिसमें हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों आते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी। Recently, which state government has launched 4 welfare scheme in 606 villages of state? तो ये किया है तेलंगाना ने। क्या है इस स्कीम में? A significant step in its commitment to improving rural development and supporting farmer. ये रायतु बंधु स्कीम के अंडर में है। Recently, Dash have been the first two Indian cities to be recognized as wetland cities by UNESCO. तो इंदौर और उदयपुर को इसमें शामिल कर लिया गया है। इंदौर इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन स्वच्छ भारत अभियान, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। और जो उदयपुर है, known as the city of lakes, has contributed significantly to conservation of its lake, इसलिए इसे भी शामिल किया गया है। These cities become an example not only for their citizens but for the whole world as to how urban development can be harmonized with the environment. 12 Conference of Parties of the Ramsar Convention in 2015, यहाँ से ये जो वेटलैंड सिटीज है इसका नॉमिनेशन निकला था। इंडियाज इंदौर्स 2 न्यू रामसर साइट, एक है सिरपुर, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, और यशवंत सागर, ये 2 रामसर साइट इंदौर से हैं। ऐसे ही जो भोज वेटलैंड है ये भोपाल से है, ये यूनेस्को रामसर साइट है। तो ये जो 2 सिटीज को रिकॉग्निशन मिला ना, इसके लिए भोपाल का भी नॉमिनेशन गया था, लेकिन भोपाल को सेलेक्ट नहीं किया गया, ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया गया है। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।